I am Romesh Khandelwal, co-founder, Apply Mentor, and Preptica. We are into the this study abroad consultancy for last 17 years, and in this last 17 years, we have successfully placed around 7,000 students and various top universities of USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, and Europe. Under the Practica, we have our ILTS, where we provide the personalized and group coaching options for the students, both at online and offline mode. So today we are here to discuss about the how to make our study in Canada plan a pro plan. So what is this? Why today? Especially because I think you, most of you who are planning to go Canada this year, uh, might be aware that today Canada is celebrating the Canada Day. Uh, so this is a good day to discuss about Canada and particularly to study in Canada. So, what is the difference between study in Canada as a pro and study in Canada just as a novice? So, biggest difference I would say, if whatever is your purpose to go to Canada, if that purpose of going to Canada is solved or is reached or achieved in a smooth way, timely, properly, without much hurdles, then you can say that your experience of studying in Canada is an pro experience. And if it is full of obstacles, confusion, problems, then in the end, obviously, you would say that your experience was not a pro experience. So, just to begin with, let me also tell you that for these 7 days, beginning from today, that is the Canada Day, we are celebrating this Canada Day or a Canada Week by giving you or all the students who are willing to apply to Canada for the colleges and universities a 50% waiver on your application fees, provided your college fees application fees is less than or equal to 100 Canadian dollars. If your college application fees is less than or equal to 100 Canadian dollars, then 50% of your application fees will be waived, or I would say it would be borne by Apply Mentor. So you could be motivated. You could, you if you are already planning and you have all the things ready, then you should not wait and you can apply immediately. Fine. So, as I said, to make your Canada study experience a pro experience, and the criteria for that is that if you, whatever your purpose is, if it is fulfilled properly, then it is known as a pro experience. Then, first of all, we have to understand why we are going to Canada. See, going to study in Canada majorly has, I think, three or four reasons. One, the popular reason or the very important reason is the quality of education in Canada is really very, very good. The curriculum in the universities and colleges are very much modern, up to date, very job oriented, industry oriented, very advanced. So if you are studying in Canada, you can very confidently say that you are studying a very modern curriculum. So when you enter the job market on completion of your studies, you can always say that you are ready for the current scenario of the time when you complete your education. Education is very futuristic in Canada. Universities and colleges, they keep on updating their curriculum very frequently. Colleges work hand to hand with the industries. They know what the industries are looking for, what kind of skills they are looking for, and they update their curriculum and teaching styles accordingly. In fact, if I would say uh, how flexible or how easily updatable these colleges and universities is that I think Canada was one of the first countries which started the online education, college and university education after the COVID pandemic came. So Canada, the students who had applied to Canada,
They were among those first batch of students who started their education earliest in comparison to the students who had applied or who had admissions in the universities or colleges in other countries. So this means that those universities and colleges are always ready to update themselves. Second reason to select Canada is the cost of education. I think the cost of studying in Canada is many a times and most of the times is lesser than studying in other English speaking countries like UK, USA, New Zealand, or Australia. The very simple maths, if I tell you, is that if average college fees in Canada is 15,000 Canadian dollar, if the average per annum tuition fees in US is 15,000 USD, and if it is in UK, it is 15,000 British pounds. So those 15,000 British pounds in UK is much higher than the 15,000 USD in USA, and the USA education of 15,000 USD is higher than the 15,000 Canadian dollar in Canada. So obviously, if 15,000, I'm just taking a random figure, it is an average tuition fees in most of the universities and colleges across UK, Canada, or USA. Uh, but the only difference is the currency unit and the currency price per in comparison to INR. The further one more reason to choose Canada is the very simple and student friendly visa process. You do not need to require a very long financial funds, old balances, 6 months old, 3 months old. You are not required to show those funds. Even if you are going for an education more than 1 year, 2 year, 3 year, you just need to transfer the first year of tuition fees and first year of living expenses to Canada. And then technically, you do not require to show any more funds for your future education or for the first year of education. So no, if you are applying under the SDS category, then it becomes very easy for you to arrange the visa application documents, especially ज़्यादातर जब हमें दिक्कत आती है किसी भी कंट्री में to apply the student visa, funds, how to show the funds and all these things definitely becomes a very complicated and difficult thing. So in Canada, all these there are no such complications. You just deposit the funds. Nobody is going to ask from where you have arranged the funds, how old those funds were with you. You just transfer the funds and you are ready to go with the visa application. Also, in Canada, there are no visa interviews and nothing. So all the process is online. So it is simple and you can say a plug and play thing. Just fill the application, submit the documents, pay the application fees, and you just need to wait for the visa decision. Obviously, during this pandemic, after the May 2019 and 2020, the visa process has in some way has become complicated because embassy was not working, sometimes VFS was not working, either medicals were not happening or biometric was not happening. So all these things as such took a little time, more time, a little very long time to get the visa decision and other things. But in general, if in future we all know that one day this pandemic will be over and everything would be normal. So just like in past, in SDS category, mostly you get your visa decision in a month. If you're applying into a general category, it might take 2 months or 2.5 months. So one very basic thing, what is the difference between the SDS and the general category of visa application? In SDS, you have to fulfill three major criteria. You have to pay the first year of total tuition fees to the college. You have to transfer first year of this living expenses in the GIC account in Canada, either through Scotia Bank or the ICICI Bank or some other way. And third thing is that you need to have an overall IELTS score of 6 band with no less than 6 in any module. If any of the three conditions are not fulfilled, then your application will go under the general category visa application. Fine. But the fourth reason for coming to Canada, which is I think the most common and the most attractive reason to choose Canada as your study destination, is the easy
permanent residency through the student pathway program. In fact, if I say that Canada was or is a torchbearer or trendsetter in this thing, Canada was among those countries which first of all saw the opportunity of making the students coming to study prepared as their future manforce or the workforce and settlement, and to provide them the settlement opportunities. Canada was among those first countries which started giving the post-study job search visa, and today it is one of the biggest reason why more and more students are choosing Canada as their study destination. So if you are going for a 1 year program, either at undergraduate level or the postgraduate level, that is after bachelor's, you will get a 1 year of job search visa, post study job search visa. If your program duration is more than 1 year but less than 24 months, then you will get a job search visa equal to the duration of your study program. And if your program is of length not less than 24 months, if more than 24 months, then you are eligible to get a post study job search visa for up to 3 years. So this has become a very attractive reason for students to go to Canada. Let me also tell you in my way how this becomes a pathway for you to get permanent residency in future in Canada. If any of you have met me personally or attended any of my previous webinars, so this is my common pathway definition for me, which I'm going to again share with you all. That if a country gives you a PR, not for you but for themselves. So Canada is facing a shortage of skilled manpower. It is said that for next 10 years, if every year Canada invites 1 lakh new immigrants, still it would not be sufficient to sustain the economic growth that Canada is experiencing right now. So need more and more skilled manpower. So what Canada is doing is that they are skilling the future immigrants by themselves through their colleges and universities. Then they are giving them, those graduates, pass out graduates, a fair opportunity by giving them job search visa to work in their industries without the need of any work permit or sponsorship from any employer. So it becomes easy for employer also to recruit you during your open job search visa, and for you also to find a better and best employer for you. And if you have acquired a 2 or 3 years of job experience, you and then if you apply for your permanent residency, you have a very strong chances of getting the PR points and to get the PR as well, because now you have proved that you are an asset to that country, you are able to earn in that country, you will not become unemployed very soon after getting the PR. So all these things goes in your favor, and your chances of getting the PR and then the chances of getting a good life in Canada becomes very strong. So what is the this? Let us discuss the education system of Canada. So Canada has most colleges and universities have the semester system of education. By semester system, the most of the semesters are of 14 weeks. Every semester is divided into 7 weeks and 7 weeks. So once you start your first semester, one semester, after 7 weeks, you will have midterm exams. Then you will have a little break, a week or two, and then your second phase of the first of that semester will start again. After 7 weeks, you will have the exam. तो अच्छी चीज़ ये है, और आप पे एजुकेशन का लोड नहीं आता है, आपको एक साथ पूरे सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देना होता है, आप 7 सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं, उसका एग्जाम देते हैं, फिर नए 7 सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं. तो ज़्यादातर बहुत रेयरली ही आपको ऐसा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टडी स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पर वो एक साथ पूरे सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं. तो एजुकेशन नॉट जस्ट इज क्वालिटी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अ वेरी बर्डनसम फॉर यू. अब जब हम सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हैं तो एक और चीज सामने आती है कि हम कौन से इनटेक में जाएं. Is it majorly, we all know that for all the countries, September is always a major intake, including Canada. तो कनाडा में मेजर इंटेक होता है सितंबर, एक दूसरा मेजर इंटेक होता है जनवरी, एंड दे आर फ्यू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज जिनके कुछ प्रोग्राम्स मई इंटेक में भी अवेलेबल रहते हैं. तो अगर मेजर फाइट जो रहती है वो सितंबर और जैन इंटेक में रहती है.
ये मेजर फाइट अभी, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आगे जब कोविड के बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत तब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत इस बारे में भी मेरे ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। अभी हुआ ये कि स्टूडेंट के पास में सितंबर इनटेक का एडमिशन है, पर वो वीज़ा फाइल नहीं कर पाया टाइमली, और वीज़ा में वीएफएस काम नहीं कर रही है, प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर रही है, हमें बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है, या हमारा डिसीजन आने में वेट हो रहा है। तो यू माइट हैव टू either wait for your this visa, or you might want to defer your this intake from September to January. So if you are deferring your intake from September to January, you have to first see that your program should be available in the Jan intake. If it is not available in the Jan intake, then either you have to start your studies from September this year only, or you have to start your studies from the next available intake. आपको deferment उसी intake के लिए मिलेगा जो next available होगा। फैन सो हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि सितंबर इनटेक ज़्यादा अच्छा है, जनवरी इनटेक ज़्यादा अच्छा है, तो वैसे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा वही इनटेक है जिसमें आपको जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। आपने कब आपने अपने IELTS कंप्लीट करा है, कब आपने अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा है, कब आपने कॉलेज में अप्लाई करा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने अपने हिसाब से सब चीज़ें टाइमली वो कर ली थी, बट द मोमेंट यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर इनटेक, आपको पता चलता है कि उसी दिन कॉलेज की एप्लीकेशन क्लोज हो गई हैं। ऐसा कनाडा में होता है, ऐसा आपके साथ भी अगर कभी होता है फ्यूचर में, तो इसको यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। कनाडा में एप्लीकेशंस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है एप्लीकेशंस का। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड उसको उसको डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपने विचार कर लिया है तो वन शुड अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन हाँ, अगर आपके चॉइस है कि मुझे सितंबर में जाना है, जनवरी में जाना है, यानी कि अगर आपके पास सब चीज़ें तैयार है, स्टिल यू वांट टू रीथिंक कि विच इनटेक वुड बी गुड फॉर यू, देन सितंबर और जैन इनटेक में थोड़ा फर्क है। सितंबर इनटेक वालों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा है जनवरी इनटेक के कंपैरिजन में। दो अब हम जब बात कर रहे हैं तो मुझे पता है कि मेजरली आज के वेबिनार का ज़्यादा फोकस जैन इनटेक रहने वाला है, तो ईमानदारी से मुझे जैन इनटेक के बारे में जो उसकी एक लिमिटेशन है वो नहीं बतानी चाहिए। बट व्हेन वी आर सेइंग दैट वी वांट टू मेक आवर एक्सपीरियंस अ प्रो एक्सपीरियंस, देन वी शुड नो ऑल द इन एंड आउट्स ऑफ एवरीथिंग। सो जैन इनटेक और सितंबर इनटेक में बड़ा डिफरेंस ये है कि सितंबर इनटेक में जो जाते हैं स्टूडेंट, उनका जो थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा वो नेक्स्ट सेमेस्टर में शुरू होगा, नेक्स्ट सितंबर में शुरू होगा। लेट्स से सितंबर 2021 में कोई स्टूडेंट जा रहा है कनाडा पढ़ने के लिए, तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर से शुरू हो जाएगा, तो थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा नेक्स्ट सितंबर से। फाइन, सो इट इज इजी। हाँ, एक साल पूरा हो जाएगा, एक सेमेस्टर 6 महीने का, 2 सेमेस्टर साल भर के, तो नेक्स्ट सितंबर में आएगा। इसमें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस ये है कि जो जैन में जाएंगे स्टूडेंट, जैन 2022 में, उनका भी थर्ड सेमेस्टर सितंबर 2022 में ही शुरू होगा। तो ये कैसे होता है कि जो सितंबर 21 में जा रहे हैं उनको ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का ब्रेक मिलता है, गैप मिलता है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी एडमिट। या तो जो सितंबर 2021 में जा रहे हैं उनको 3 से 4 महीने का वैकेशन मिल जाता है, जो जैन 2022 में जाने वाले स्टूडेंट को नहीं मिलता है। और वैकेशन में यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम मनी फॉर योरसेल्फ, टू थोड़ा सा आपका कॉलेज फीस का, लिविंग एक्सपेंसेस का जो बर्डन है वो आप थोड़ा सा रिकवर कर सकते हैं बाय वर्किंग फुल टाइम ड्यूरिंग द वैकेशन, जो सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए मिलती है। जैन इनटेक में जाने वालों के लिए वो फर्स्ट ईयर में जो गैप ईयर मिल रहा है उसमें नहीं मिलती है। हाँ, सेकेंड ईयर से तो आप लोग सब बराबर ही हो जाते हैं, तो आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से, अगर आपका प्रोग्राम की ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर है, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से आपको और सभी स्टूडेंट्स को वो गैप सेमेस्टर मिल ही जाता है। पर फर्स्ट ईयर जब आप जाते हैं तो जैन इनटेक वालों के लिए थोड़ा सा इसमें एक लिमिटेशन रहता है। एक दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार सुनने को मिलता है कि ओके, मीनवाइल आई एम गोइंग ऑन स्पीकिंग, you people can keep on writing your queries in the chat box, so in the end we can take your queries and questions as well. हो सकता है कि जो आपकी क्वेरीज अभी जनरेट हो रही हैं वो हो सकता है बातचीत के दौरान सॉल्व भी हो जाएं।
और अगर नहीं भी होती हैं तो इन द एंड वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, but we will try to keep today's session as brief as possible and as explanatory as possible. एक क्वेश्चन आता है कि वेदर आई शुड गो टू स्टडी डिप्लोमा और शुड आई गो टू स्टडी डिग्री. सो आई थिंक ये क्वेश्चन कनाडा के केस में ज़्यादा आता है, क्योंकि कनाडा में डिप्लोमा प्रोग्राम्स बहुत हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे अच्छे डिप्लोमा प्रोग्राम्स देते हैं. और इंडिया से हम जब जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा आता है, क्योंकि इंडिया में डिग्रीज को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं इन कंपैरिजन टू एनी डिप्लोमा. तो वैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली गोइंग फॉर अ डिग्री प्रोग्राम आइदर इट इज आफ्टर 12th अगर आप जा रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री, और अगर आफ्टर बैचलर्स जा रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री में जाना डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है और उसको आप प्रेफर कर सकते हैं. क्या कंडीशंस होती है जब आप कॉलेज को प्रेफर करें, या क्या कारण हो सकते हैं कि आप डिग्री की जगह डिप्लोमा लें, वो कुछ ये कारण मैं अभी बता देता हूँ. पहला तो ये है कि यूनिवर्सिटी डिग्री, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो थोड़े हाई रहते हैं. नॉट वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ आर देयर लाइक द डलहौजी यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, रजाइना यूनिवर्सिटी है. ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अपने सेलेक्टिव प्रोग्राम्स पे लेस देन 70% पे भी एडमिशन दे देती हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दे नीड अ minimum 70% in your 12th or in your graduation to be eligible to get the admission. Point तो अगर आपका 70% से कम है और आप यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग टू अ कॉलेज. मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि कॉलेज में जाने के भी क्या फ़ायदे होते हैं, वाई कॉलेज डिप्लोमाज आर मोर पॉपुलर इन कैनेडा देन द यूनिवर्सिटी डिग्रीज. ओके, सो फर्स्ट इज मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. IELTS भी कारण बन जाता है. ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट एक्सेप्ट स्टूडेंट्स विद लेस देन 6.5 बैंड्स ओवरऑल. There are many universities and programs where they need a minimum overall score of no less than 7 bands, overall 7 bands and no less than 6.5 bands. तो अगर आपका IELTS का स्कोर भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रहा है, सपोज यू हैव 70, 75 or 80% in your graduation or in your 12th, still if your IELTS score is low, then you might not be eligible to get into few of the universities because of IELTS. The third reason might be the cost of studying in a university or the cost of studying in a college. Not all colleges are cheap and not all universities are very expensive, but most of universities, the cost of study is little higher than studying in a college. So cost can also become a reason why why one can choose a college over a university. But what are the benefits if you have 7 bands in IELTS, if you have very good academic records, still there are many times the student chooses a college over a university. So what could be those reasons? One of the biggest reason is the kind of education the colleges are offering. The college curriculum is designed to make you job ready or industry ready. So you can always say that mostly a college program is making you more job ready than a normal university degree. University degree curriculum are more theoretical, research based or thesis based or course based, and very rarely few programs are only the project based or they have the co-op options. But most colleges have the even the program that they design, they are very industry oriented. So you become more employer by studying in a college. At the same time, college offers you more variety of options in terms of specializations. Okay, you get many kind of specializations which a routine university degree might not be giving you. Like if I give you a very simple example, if you're going to after 12th science with maths, you are going to study a bachelor's in computer science. So most universities will be giving you a bachelor's of computer science, either general or if they have some concentration, then they have very limited concentrations like data science or artificial intelligence. But if you're going for a college diploma after 12th or after graduation as well, in diploma level you get a lot of specialization like data science, cloud computing, artificial intelligence, business data analytics and whatnot.
user experience, UX, UI. So you get a lot of specialization in colleges in comparison to the universities. Not just computer science, if it's say in terms of general programs. If you're going after mechanical engineering, you might get the energy management, you get the industrial management, process engineering, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के कई तरह के प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं कॉलेजेस के अंदर. आप कॉलेजेस में जाते हैं, इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ समवेयर रिलेटेड टू हेल्थ साइंसेज, तो आपको कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं इस तरह के प्रोग्राम, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ. पर कॉलेजेस पे आपको डिप्लोमा लेवल पे डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, डिप्लोमा हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोग्राम्स देते हैं विच आर वेरी पॉपुलर अमंग द MBBS डॉक्टर्स और द BDS डॉक्टर्स और द फार्मेसी ग्रेजुएट्स. तो इस तरह के प्रोग्राम्स के ऑप्शंस आपको कॉलेजेस में ज़्यादा मिल जाते हैं. फाइन. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द ड्यूरेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. लेट मी जस्ट सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस जो अभी हम बात करें उससे रिलेटेड है. Which will be the cheapest course after graduation for business studies? Someone asked me which one be the cheapest course. See, the cost or the एक्सपेंसिव और द लो कॉस्ट, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है. मेरे लिए जो बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी चीप हो सकता है. मेरे लिए जो काफ़ी चीप हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है. सो इस तरह से बहुत जनरलाइज आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा. लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको कनाडा में ऑब्वियसली यू विल गेट अ वाइड रेंज इन द कॉस्ट ऑफ कॉलेज फीस. आप ऑन्टेरियो, इनफैक्ट आप कॉस्ट को कई तरीके से देख सकते हैं. टोरंटो में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा होगी, पर आप अगर यही पढ़ाई अब अगर आप किसी और प्रोविंस में करेंगे, सस्केचुअन में करेंगे या लेट्स से किसी और न्यू ब्रुंसविक में करेंगे, तो माइट भी आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा. ये भी एक तरीका होता है कॉस्ट को कम करने का. दूसरा, कॉलेज फीस के आधार पे भी आप देखेंगे तो कई आपको टोरंटो के अंदर या ऑन्टेरियो के अंदर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ कॉलेजेस मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग फीस है सिमिलर से प्रोग्राम का. तो आपकी एलिजिबिलिटी, कॉलेज की प्रोफाइल और वो सब देखकर ही ये बताया जा सकता है कि आपके बजट में कौन सा कॉलेज या प्रोग्राम सबसे सूटेबल है. अगेन देखिए, cost is one of the very important reason. One should definitely consider the cost of studying when they are going abroad. But at Mentor, we always want you to get a proper plan of your studies. कॉस्ट को तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस रखना ही है, पर सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने से आपके जॉब चांसेस बढ़ेंगे, किस तरह के प्रोग्राम आपको करने चाहिए, आपकी प्रोफाइल से क्या मैच करता है, किस तरह के प्रोग्राम में आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, किस तरह के प्रोग्राम को आप जस्टिफाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, और किस तरह के प्रोग्राम में आपको आगे जाके जॉब सेटलमेंट और इस तरह की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती हैं. तो बजट के साथ साथ में इन सब चीज़ों का भी एक राइट अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यू वुड हैव डेफिनेटली, एज आई सेड, अ स्टडीइंग कनाडा प्रो एक्सपीरियंस. किसी भी एक ही चीज़ को सिर्फ फोकस करके नहीं चलना है, सभी चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके एक राइट मिक्स आप बना सकते हैं. एंड दिस वे आप अपना क्लटर कम कर सकते हैं. अगर अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे कोई भी एक प्रोग्राम इन कनाडा, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस. तो किस तरह से क्लटर कम करें, किस तरह से हम राइट प्रोग्राम तक पहुंचें, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ता है. एट मेंटर वी कॉल इट AAA असेसमेंट. आप अपना AAA असेसमेंट कराइए. वी डू इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग होती है, आपके एस्पिरेशंस को लेकर, आपके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बजट, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करियर प्लानिंग है, क्या बजट है, आपका पिछली पढ़ाई कैसी रही है, आपका कितने बैकलॉग्स थे, कितने नहीं थे, ये सब चीज़ें देखते हुए बहुत राइट मिक्स ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके लिए बनाया जा सकता है. एंड विच कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर एडमिशन चार्जेस. आपकी एप्लीकेशन फीस वेस्ट ना हो, आपको रिजेक्शन ना आए एडमिशन के लिए, आपका वीज़ा में रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए. एट द सेम टाइम मैं आपको बता दूँ, people have this wrong notion that Canadian universities are not very liberal in giving the scholarship. Let me tell you, Canadian universities and even colleges are very liberal in giving the scholarships. If you are applying in a right way, you might get a scholarship and the chances are good. So ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए किस तरह के प्रोग्राम और कब अप्लाई करें तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाएंगे. बहुत सिंपल है कि जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपका एडमिशन के चांसेस और स्कॉलरशिप के चांसेस भी आपके लिए हमेशा बढ़ जाएंगे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन is there less chances of visa approval in non SDS category compared to SDS category?
देखिए, ये एक क्वेश्चन है कि एसडीएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस किस में ज़्यादा हैं या किस में कम है? तो वेरी सिंपल आंसर, यस, एसडीएस कैटेगरी में आपके वीज़ा के सक्सेस रेट कंपैरेटिवली जनरल कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करने से बढ़ जाती है। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि एसडीएस कैटेगरी में आपसे बहुत कुछ ज़्यादा मांगा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर आपका आईएलटीएस प्रॉपर है, अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर के फंड्स वहाँ ऑलरेडी जमा करा दिए हैं लिविंग एक्सपेंसेस और ट्यूशन फीस के, ठीक है, और आपने अपना मेडिकल बायोमेट्रिक सब प्रॉपरली करा लिया है, तो जनरली एम्बेसी के लिए बहुत हद तक इजी हो जाता है आपके वीज़ा डिसीजन लेना, फास्ट हो जाता है, इजी हो जाता है और आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जनरल में लगा रहे हैं तो यानी कि शायद आपने अपनी फर्स्ट ईयर की टोटल ट्यूशन फीस जमा नहीं कराई है, तो आपको अपना फंड्स ज़्यादा शो करने पड़ेंगे, प्रॉपर आपको डिटेल्ड स्टेटमेंट्स वगैरह देनी पड़ेगी। अगर आपने अपना आईएलटीएस का स्कोर लो रहा है तो वो आपके लिए जिस अगर आईएलटीएस की करंट से आपका जनरल कैटेगरी में अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी एक रीज़न बन सकता है एम्बेसी को आपके बारे में एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो इस तरीके एक धारणा बनाने में। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एसडीएस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, उसके हिसाब से सब प्लानिंग करें, सब करें। बट ऐसा भी नहीं है कि जनरल में अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आएगा नहीं। देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर हु आर अप्लाइंग अंडर द जनरल कैटेगरी, and there are good number of students who and after applying to general category are getting the visa very successfully. तो चांसेस एसडीएस में वीज़ा के ज़्यादा हैं, बट जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए भी कोई मनाही नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एम्बेसी ने जब वो ऑप्शन दिया है आपको अप्लाई करने के लिए तो इसका मतलब ये है कि एम्बेसी आपको उस कैटेगरी में भी वीज़ा देने को तैयार है एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रूव योर सेल्फ एज अ जेन्युइन स्टूडेंट। मैंने जो ट्रिपल असेसमेंट की बात करी थी वो भी ये जो जेन्युइनिटी वाला केस है कि आपने अगर सही प्लानिंग करी है, सही तरह के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सही तरह के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, वो क्या सही है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि एम्बेसी आपको किस तरह से देखने वाली है इफ यू आर अप्लाइंग विद दैट प्रोग्राम। तो वो आपका लॉजिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए, यू शुड हैव द राइट एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर गोइंग टू कनाडा, व्हाई दैट पर्टिकुलर कॉलेज, व्हाई दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर ही आपको अच्छा प्रोग्राम और सही प्रोग्राम हम लोग सजेस्ट करते हैं विद ट्रिपल असेसमेंट। एंड आवर सक्सेस रेट विद ट्रिपल असेसमेंट स्टूडेंट्स इज वेरी हाई इन द एडमिशन, स्कॉलरशिप, वीजा, एवरीवेयर। How is residency facility there? We have to manage our own or you can help arrange? Definitely it is the responsibility of apply mentor to help you all with, see, when I'm saying experience like a pro, then it should be a pro experience। आपको किसी भी स्टेज पे डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो रेसिडेंसी का मैटर हो सकता है। रेसिडेंसी मीन्स अकोमोडेशन, जो मैं समझ रहा हूँ। तो वंस यू गेट एडमिटेड इन अ कॉलेज, वंस यू गेट द वीज़ा एंड यू आर फ्लाइंग, आपको उससे पहले बहुत प्रॉपर वे में काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हमारी तरफ से मिलेगी। एक जानकारी होती है अकोमोडेशन की, वी प्रोवाइड यू मल्टीपल चॉइसेस ऑफ अकोमोडेशन। जाने से पहले वहाँ क्या क्या फैसिलिटी आपके लिए है, अलग अलग अकोमोडेशन में क्या क्या कॉस्ट आपके लिए होने वाली है, इन सभी की हम आपको जानकारी देने वाले हैं और आपके लिए पहले से ही अकोमोडेशन बुकिंग करके रखने वाले हैं, फॉर विच ऑब्वियसली यू विल पे, बट यू विल हैव अ अकोमोडेशन प्री बुक्ड फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग। आपको मर्जी है, इफ यू ऑलरेडी हैव सम फ्रेंड्स और फैमिली इन कनाडा, यू डू नॉट नीड असिस्टेंस इन दैट, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू नीड, वी आर मोर देन विलिंग, मोर देन कैपेबल and more than happy to assist you with the accommodation arrangement also. Not just accommodation, if you need an airport pickup, काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको एयरपोर्ट पिकअप फ्री भी देते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको पेड बेसिस पे भी देते हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस एयरपोर्ट पिकअप की सुविधा नहीं भी देते हैं। तो ऐसे किसी केस में आपको एयरपोर्ट पिकअप चाहिए तो अप्लाई मेंटर आपके लिए वो सब भी अरेंज करता है एंड यू जस्ट नीड टू पे फॉर द एक्चुअल एक्सपेंसेस इफ इट इज़ पेड। अगर वो फ्री है तो कॉलेज के साथ में कोऑर्डिनेशन करके आपका एयरपोर्ट पिकअप भी करा दिया जाता है एंड यू डू नॉट नीड टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स बाय योरसेल्फ। नॉट जस्ट दिस थिंग, वी हैव टाई अप विद ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक अक्रॉस इंडिया। आपको, आप कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं, गुजरात में पालनपुर से बिलोंग करते हैं, बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, या मुंबई में पुणे से या ठाणे से बिलोंग करते हैं। if you wish to apply for an education loan, mentor can very well help you with the right and best education loan arrangements and वो फैसिलिटी भी मेंटर आपके लिए करता है।
Can anyone apply for admission at present without result of BCom and IELTS just to book the seat? That's really a very good question. That can anyone apply for admission at present without result of BCom and IELTS just to book the seat? देखिए मैं आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ. कनाडा में ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कंडीशनल एडमिशन या कंडीशनल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं. आपके सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बैचलर्स के लिए बैचलर्स डिग्री के बाद जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की सभी मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए. और IELTS का स्कोर भी रेडी होना चाहिए. 12th के बाद भी जा रहे हैं तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए. अभी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट मास प्रमोशन हुआ है इस साल, तो उनके पास अपनी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, IELTS का स्कोर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. दिस इज फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है. देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन कनाडा जो अकेडमिक कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ड्यू है, जैसे कि आपका फाइनल सेमेस्टर का भी मार्कशीट ड्यू है या 12th का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो 12th की प्रोजेक्टेड मार्कशीट के आधार पे जो आपको स्कूल करके देता है उस बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका इंटेक मिस ना हो जाए. बिकॉज वी ऑल नो दैट जनवरी इंटेक के लिए भी काफ़ी सारे कॉलेजेस ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर दी है और आने वाले काफ़ी समय में भी बंद करने वाले हैं. तो इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिस द इंटेक, आप कंडीशनल बेसिस पे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एकेडमिक कंडीशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं. इसी प्रकार से देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जहाँ पे अगर आपका IELTS का स्कोर रेडी नहीं है तो आप सीट बुक करने के लिए IELTS को पेंडिंग में रखकर भी अप्लाई कर सकते हैं. लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गिव यू द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, क्योंकि वो लकीली मेरे पास है ही. जस्ट आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स द लिस्ट ऑफ, प्लीज गो थ्रू इट. I think you all can see in the list. I have shared with you two lists. One is the list of college and university जो conditional academic पे आपको admission दे सकते हैं. अगर आप जैन इंटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कोई भी सेमेस्टर का मार्कशीट या 12th का मार्कशीट रेडी नहीं है और इन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू शुड गो एंड इमीडिएटली अप्लाई एंड शुड नॉट वेट फॉर द मार्कशीट और एनी ड्यू एकेडमिक डॉक्यूमेंट, बिकॉज ऐसा ना हो कि जब तक वो आए तब तक इन कॉलेजेस के इंटेक बंद हो जाए. इसी प्रकार से मैंने एक और लिस्ट शेयर करी है. अगर आपका IELTS का स्कोर अभी पेंडिंग है तो भी आप काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. IELTS को पेंडिंग रख के अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो इनटेक है वो मिस नहीं होगा. आपको कंडीशनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा और आप आगे अपना स्कोर जमा करा के जो भी डॉक्यूमेंट या IELTS बाकी है वो जमा करा के कंडीशंस को फुलफिल करके अनकंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेकर आगे अपने प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं. बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि अभी अगले 7 दिन तक फॉर वी आर सेलिब्रेटिंग द कनाडा वीक, सो इफ़ यू आर अप्लाइंग टू एनी यूनिवर्सिटी इन कॉलेज which has an application fees of up to 100 Canadian dollars, तो we are going to bear the 50% of the application fees for you. तो आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है और आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो you do not need to wait and you can immediately start your application and save on your application fees. Okay, fine. So let me see if I have missed any other questions. Can apply for admission at present without IELTS? Sir, I need your guidance. Can I share my query? Yes, we are here to discuss your queries and concerns. So please feel free to ask your queries. If I will try my level best to answer your query as good way as I can. Is GIC compulsory in Canada in every college? See, GIC is compulsory if you are applying under the SDS category. If you want, do not, GIC किसी कॉलेज के रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. GIC आपके लिविंग एक्सपेंसेस का आप एडवांस डिपॉजिट करा रहे हैं कनाडा में और उसको वहाँ जाके आप मंथली इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ करने वाले हैं. तो कॉलेज के ऑफर लेटर पे कभी लिखा नहीं आता है, कॉलेज को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपना GIC का इन्वेस्टमेंट वहाँ करें.
ये आपके वीजा कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। अगर मे रिक्वेस्ट एवरीवन म्यूट, या तो ये कॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वीजा कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है। और जीआईसी, अगर आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जीआईसी मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल बी अप्लाइंग अंडर द जनरल स्टूडेंट वीजा कैटेगरी, जिसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, डिसीजन आने का प्रोसेस लंबा है। प्रोसेस दोनों ही ऑनलाइन है, दोनों में कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो आप इसको अपनी सुविधा और कन्वीनियंसी के हिसाब से कर सकते हैं। इस कोवैक्सीन इज अप्रूव्ड एट कनाडा? ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जिसने भी लिखा है, आई रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अभी ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे, एक सेकंड दीजिए, एक्चुअली जस्ट अ मिनट। या सो अभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हम सब में ये है कि कनाडा अगर हमें जाना है, कोई सितंबर में, अभी किसी का इंटेक हो सकता है, आप में से कई लोगों का सितंबर में ऑफर लेटर आया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द वीज़ा, आइदर यू आर वेटिंग फॉर द वीज़ा डिसीजन, और यू माइट बी स्टार्टिंग योर वीज़ा, आपका बायोमेट्रिक का वेट कर रहे हैं या मेडिकल का अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, बस सितंबर इंटेक में जा रहे हैं। Yeah, might be you are applying for the January intake and you have got the offer letter, or you might be planning to apply. So there's a big question ki if we are going, so how Canada is going to accept us because of this pandemic and COVID. तो पहली चीज तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी वैक्सीन आपको लगी है उसके बावजूद भी आप कनाडा जा सकते हैं। कनाडा आपको रोकता नहीं है टू एंटर देयर टेरिटरी। आपने कोवैक्सीन लगाई है, आपने कोविशील्ड लगाई है, या आपने कोई दूसरी वैक्सीन लगाई है, they will definitely accept you inside their territory. The only difference and biggest difference is that as long as you are going with a WHO approved vaccine, that is India terms में बोले हैं ज़्यादा पॉपुलर उसमें कोविशील्ड है। तो अगर आपने कोविशील्ड की वैक्सीनेशन ली है, आपके दोनों वैक्सीन हो गए हैं, कम से कम लास्ट सेकेंड डोज हुए हुए 14 दिन हो गए हैं, आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है कोविशील्ड विच इज WHO अप्रूव्ड, तब आप अगर कनाडा फ्लाई कर रहे हैं तो अभी तो खैर 21 जुलाई तक का फ्लाई बैन है, पर आप उसके बाद जब फ्लाई बैन ओपन हो जाता है तो आप जाते हैं तो आपको कनाडा जाके कोई तरह का क्वारंटाइन नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है, एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू योर अकोमोडेशन। आपने प्राइवेट अकोमोडेशन लिया है, कॉलेज का अकोमोडेशन लिया है, आप वहाँ जाइए, आराम से रहिए, नॉर्मल अपने जैसे कि रूटीन में अपना पढ़ाई करते हैं और लाइफ रहते हैं। पर अगर आप ऐसी वैक्सीन लगा के जा रहे हैं जो कि जिस समय आप जा रहे हैं उस समय तक WHO ने अप्रूव नहीं करी है, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ नो वैक्सीन, नॉट वैक्सीनेटेड। कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई समस्या नहीं आती है। जब वैक्सीन आई नहीं थी पर कोरोना आ गया था, तब भी लोग फ्लाई कर रहे थे दूसरी कंट्रीज के अंदर। तो अगर आप जिस समय वैक्सीन नहीं था और अभी भी अगर आपको उनके टर्म्स में टेक्निकली यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो सिर्फ इतना करना रहेगा कि आपको फ्लाइट से 72 आवर्स पहले के दौरान में आपको अपना एक RT-PCR टेस्ट कराना है। फिर आप फ्लाई करेंगे, तब आपको कनाडा जाके या तो एयरपोर्ट पे जो उन्होंने अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटीज बना रखी है 3 दिन के लिए वहाँ रुकना रहेगा ऑन पेमेंट बेसिस, या कॉलेजेस की भी अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटीज है, आप वहाँ जाके रुक सकते हैं पहले से उसको ब्लॉक करा के, और उसका पे करके आप वहाँ रुक सकते हैं। अपने वो 2-3 दिन का जो क्वारंटाइन होता है वो पूरा करके आप आराम से अगेन रूटीन लाइफ शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैक्सीन आपका कोई भी लगा हुआ है, आपके कनाडा जाने के ना तो वीज़ा प्रोसेस में ना फ्लाइंग प्रोसेस में कोई, वीज़ा प्रोसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, वीज़ा प्रोसेस में तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप वैक्सीनेटेड है या नहीं है। और फ्लाइंग के समय पे सिर्फ इतना सा रहेगा, आइदर यू हैव टू गेट अ 3 days ऑफ क्वारंटाइन, और यू इफ़ यू आर नॉट WHO वैक्सीनेटेड, और अगर आप WHO वैक्सीनेटेड हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी वो नहीं करना है, क्वारंटाइन नहीं होना है। 7 जुलाई से 21 जुलाई में अभी बीच में कुछ फ्लाइट्स तो जा रही हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं जा रही हैं, तो स्टूडेंट ऐसा भी कर रहे हैं अभी तो जिनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है वैक्सीनेशन का, WHO अप्रूव्ड वैक्सीनेशन, यानी कि कोविशील्ड का नहीं है, कोवैक्सीन का है,
तो वो ये कर रहे हैं कि वो यहाँ से कनाडा के लिए जब फ्लाइट लेते हैं तो डायरेक्टली कनाडा नहीं जाते हैं, एयर एमिरेट से जा रहे हैं तो वो दुबई में 2 दिन का होल्ड कर लेते हैं, किसी और एयरलाइन से जा रहे हैं तो किसी और कंट्री में 2 दिन का होल्ड कर लेते हैं। फिर वहां से ये आपको ट्रेवल एजेंट भी आपके लिए इस तरह के अरेंजमेंट कर सकता है। फिर वहां से अपना RT-PCR करा के आप कनाडा जाते हैं तो भी अगेन शायद आपको अभी तक के हिसाब से तो आपको किसी तरह के क्वारंटाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइन, सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड माई सेल्फ। इफ स्टिल इफ मैं नहीं समझा पाया हूँ तो यू पुट योर क्वेरी प्रॉपरली, आई विल ट्राई टू पुट मोर लाइट ऑन दैट. Sir, can you please tell us about external scholarships available apart from the scholarship given by the particular college and university? Yes, external scholarships are there. There are many. See, external scholarship वो सभी scholarship कहलाती है जो वो particular college या university जिसमें आपने admission लिया है उसके अलावा कोई दे रहा है. इंडिया में बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो आपको अब्रॉड में आप जाके पढ़ाई करते हैं, कनाडा में जाके पढ़ाई करते हैं, तो आपको कुछ पर्टिकुलर स्टडी प्रोग्राम्स अगर आप चूज करते हैं तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है. कनाडा के अंदर भी कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में या किसी पर्टिकुलर तरह के प्रोग्राम में पढ़ने जा रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप देते हैं. तो ये तो एक बहुत लंबा लिस्ट हो सकता है, उसके बारे में तो एक आई थिंक वी हैव टू टेक a different webinar, but definitely whatever is your profile, be sure that apply mentor से कोई भी एप्लीकेशन जा रही है तो आपके लिए सभी पॉसिबल स्कॉलरशिप्स के लिए हम लोग पूरी से पूरी मेहनत करते हैं, and we try that you get some kind of scholarship. Every 1 out of 3 students going through mentor anywhere in the world to study, they definitely get one or some other kind of scholarships. After graduation, masters or PG program, which programs are suitable for engineering students in Canada after graduation, masters और PG डिप्लोमा? देखिए वैसे तो मैंने डिप्लोमा और डिग्री में थोड़ा डिफरेंस बताया है, थोड़ा सा एक ये वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक और भी आपको बता देता हूँ मैं. कनाडा में आपको एक कुछ टर्म सुनाई देती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोई दे रहा होता है, कोई कॉलेज आपको पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे रहा होता है, कोई कॉलेज आफ्टर 12th अगर आप जा रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे रहा होता है, कोई कॉलेज अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दे रहा होता है, कोई कॉलेज अंडर ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा दे रहा होता है. तो सबसे पहले तो हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में एक डिफरेंस समझ लें कि कोई डिफरेंस नहीं है. Either you are going for a certificate program or a diploma program. For Canada, both are equal. Okay. Either your program name is postgraduate certificate in healthcare management or a postgraduate diploma in healthcare management. दोनों same हैं. Postgraduate certificate in let's say energy management और postgraduate diploma in energy management दोनों एक ही प्रकार की चीजें हैं. आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा से परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब क्वेश्चन है डिग्री या डिप्लोमा, वो तो मैंने बताया है आपको कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं, जॉब रेडी ज़्यादा करते हैं. मास्टर्स प्रोग्राम कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा होता है. हाँ, अगर आपके पास आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है, यू हैव गुड परसेंटेज, यू हैव गुड एकेडमिक्स, गुड IELTS स्कोर एंड आपके पास आपका प्रॉपर बजट भी है, तो यू कैन ऑलवेज चूज अ यूनिवर्सिटी डिग्री ओवर अ कॉलेज डिप्लोमा. ओके. और अगेन आपको क्या पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगर वो स्पेशलाइजेशन डिग्री में नहीं अवेलेबल है, कहीं अवेलेबल नहीं है पर डिप्लोमा में मिल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव प्रायोरिटी टू अ कॉलेज डिप्लोमा देन अ यूनिवर्सिटी डिग्री. ओके. आप समझ लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट है उसमें डिग्री या डिप्लोमा से फर्क नहीं पड़ता, उससे सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन से फर्क पड़ता है. आधा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट जॉब सर्च वीज़ा है, पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीज़ा है, वो आपके लिए बराबर ही रहने वाला है, इधर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ कोर्स ड्यूरेशन से होता है. हाँ, अगर आफ्टर 12th जा रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन पे और बात करना चाहूँगा, मैं भूल नहीं जाऊँ, इसलिए वो क्वेश्चन है कि हमें आफ्टर 12th जाना चाहिए, आफ्टर कॉलेज जाना चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन जाना चाहिए. और उसके पहले मैं ये जो मैं कह रहा था वो पूरा कर लेता हूँ. वो ये है कि डिप्लोमा अगर आप आफ्टर 12th जा रहे हैं तो डिप्लोमा आप कर सकते हैं विच इज़ जनरली ऑफ 2 years. एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं जो 3 साल का है. एडवांस डिप्लोमा या डिप्लोमा को आप हमेशा अपनी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसका फ़ायदा आपको ये हो सकता है कि आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन थोड़ा कम हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी में काफ़ी महंगा है तो. दूसरा ये भी है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही 4 साल की पढ़ाई करनी पड़े. तो आपने अगर एडवांस डिप्लोमा कर लिया है 3 साल का आपको, या 2 साल का एडवांस डिप्लोमा कर लिया, नॉर्मल डिप्लोमा कर लिया है, तो 2 साल का 3 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिल जाएगा आपको.
उसके बाद फ्यूचर में अगर आपको लगता है आप काम करिए, इंडस्ट्री में जाइए, फिर आपको इंडस्ट्री में जाके लगता है कि मेरे को कोई पर्टिकुलर तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, या मेरे को जॉब प्रमोशन में या किसी तरह की चीज़ में डिग्री होने से ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो दैट टाइम यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू ट्रांसफर योर प्रीवियस क्रेडिट टू अ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में बची हुई पढ़ाई आप कर सकते हैं। आपको 2 साल से 3 साल तक का क्रेडिट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा जब करा था तो उसमें आपने कैसा परफॉर्म किया था, आपने जो नया प्रोग्राम लिया है यूनिवर्सिटी में वो पिछले प्रोग्राम से कितना रिलेट करता है। तो उन सब चीज़ों के आधार पे आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का, 2.5 साल, 3 साल का आपको क्रेडिट मिल सकता है। ओके, तो वो आपको कॉलेज डिप्लोमा थोड़ी इस तरह की लिबर्टी देते हैं कि यू कैन स्टार्ट योर वर्क सूनर एंड देन लेटर ऑन यू कैन गो टू अ डिग्री। यही चीज़ आपके साथ आफ्टर कॉलेज भी होता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अभी चले गए हैं, फिर बाद में फ्यूचर में 2-3 साल काम करने के बाद कभी भी ऐसा लगता है तो यू कैन ऑलवेज ट्रांसफर योर प्रीवियस कॉलेज डिप्लोमा क्रेडिट्स टू अ यूनिवर्सिटी डिग्री। और आपको 6 महीने, अगर 2 साल की डिग्री है तो आपको 6 महीने, 8 महीने या 1 साल का क्रेडिट मिल सकता है। तो सिर्फ आपको 1 साल ही और यूनिवर्सिटी में पढ़ना रहेगा। समझिए, अभी आपके 60% हैं, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, पर अभी आपके पास अच्छे परसेंटेज नहीं है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्म करिए, उसमें अच्छे परसेंटेज बनाइए, तो आप सीधे क्रेडिट ट्रांसफर करके यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में भी जा सकते हैं। ओके, कई बार ये आपके हाथ में भी नहीं होता है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के तो हाथ में रहता है कि वो डिप्लोमा में जाए कि डिग्री में जाए, क्योंकि 4 साल की डिग्री होती है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री हमारे यहाँ इंडिया में 4 साल की होती है इंजीनियरिंग की। तो आप सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से एलिजिबल हो जाते हैं। पर अगर आपने इंडिया में बीबीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, जनरली वो 3 साल के रहते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, कुछ हैं, कुछ फ्यू प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी इंडिया की 3 साल की डिग्री को एक्सेप्ट करती है, पर मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट एक्सेप्ट अ 3 ईयर डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम इंडिया। तब आपको कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में ही एडमिशन मिलता है, वही आप पढ़ते हैं, एंड देन लेटर ऑन इफ इट इज़ रियली नीडेड देन ओनली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ डिग्री। देखिए, मेरा तो इसमें एक साइंस ये भी है कि अगर मैं इंडिया में ही रहता, मुझे कनाडा जाता ही नहीं पढ़ने के लिए कभी, तो शायद बैचलर्स डिग्री करने के बाद तो मुझे आगे पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं थी। इंडस्ट्रीज बैचलर्स को, मास्टर्स को मोस्टली इक्वल लेवल पे एंट्री लेवल देती हैं। ओके, आप अगर कॉलेज के बाद जा रहे हैं तो आपके लिए शायद वो डिप्लोमा या डिग्री एक बड़ा रीज़न ये है वहाँ ज्वाइन करने का, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे टू एंटर द कंट्री एंड टू गेट इनटू द जॉब मार्केट। ओके, तो अगर आपको एक अच्छा कॉलेज डिप्लोमा मिल रहा है इन योर बजट, इन द राइट फॉर्मेट, इन राइट करिकुलम, यू कैन ऑलवेज प्रेफर अ डिप्लोमा ओवर अ डिग्री। यहीं से वो क्वेश्चन आ जाता है कि मैं 12th के बाद जाऊं कनाडा या किसी भी कंट्री में, स्पेशली कनाडा, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जाऊं। तो ग्रेजुएशन आपका हो गया है तो आप 12th के बाद नहीं जा सकते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही जाना पड़ेगा। बट इफ यू आर स्टिल इन 12th और यू आर अभी आप आगे जाने वाले हैं, तो आई थिंक आफ्टर 12th जाना एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, बिकॉज यू गेट अकोमोडेट विद दैट कंट्री फास्टर। आपको ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने करा है या अंडर ग्रेजुएट डिग्री करी है, तो भी आप उनके जॉब मार्केट में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। आपको मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शायद फ्यूचर में कभी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप जल्दी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको बता दूं, डेफिनेटली इंडिया में अंडर ग्रेजुएट डिग्री करेंगे तो उसकी कॉस्ट, और कनाडा में अंडर ग्रेजुएट डिग्री करेंगे उसकी कॉस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। स्टिल इफ यू आर स्पेंडिंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कॉस्ट इन कनाडा, उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है विच इज़ मच फास्टर एंड सूनर देन a return on investment, and the longevity of investment returns from Indian undergraduate degree is lesser in comparison to Canada. तो अगर आपको जाना ही है कनाडा, इफ इट इज़ इन योर बजट और आप 12th के बाद जा सकते हैं, यू आर मैच्योर इनफ, आपको होम सिकनेस नहीं है, तो यू आर वेरी मच द राइट डिसीजन वुड बी टू गो आफ्टर 12th एज वेल। कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। Let me see if there are more questions. I need the guidance and pathway to see. My name is Vijay Sticker, 70%. I have getting certificate. देखिए, मैं विजय, बहुत लंबा है आपका, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, देन आई एम गोइंग टू शेयर माय डायरेक्ट नंबर एज वेल। तो मैं एक जनरल बता देता हूँ। देखिए, सभी कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूडिंग कनाडा आपके पढ़ाई में कुछ बैकलॉग्स रहे हैं,
तो वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा हिंड्रेंस नहीं है. यू कैन गेट अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इवन आफ्टर हैविंग द बैकलॉग्स. अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं, सभी से प्योर एकेडमिक लेवल पे नहीं देखते हैं. काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं टू सेलेक्ट अ स्टूडेंट ओवर सम अदर स्टूडेंट. आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पढ़ाई करी है उसकी क्या प्रोफाइल है, उसकी इंडिया में नैक एक्रीडिटेशन लेवल क्या है, आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कैसा है, आपका IELTS का स्कोर क्या है, ये सभी चीज़ें. कई बार जो हम आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हैं वो आपके लिए कई बार बहुत एडवांटेज कर जाता है. माई टीम दे प्रिपेयर योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन अ वेरी आई वुड से बहुत डीप जाके और बहुत मेहनत करके आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाए जाते हैं. वो भी कई बार आपके लिए मैजिक कर जाते हैं, मिरेकल कर जाते हैं. यू गेट एन एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम जिसके लिए शायद इन जनरल आपको लगता था कि आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं. सो यू ऑलवेज हैव अ होप ऑफ गोइंग टू कनाडा, गोइंग टू अ गुड प्रोग्राम एंड फ्यूचर में वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, सेटलमेंट के लिए आपके अपॉर्चुनिटी रहती है. एक दो चीज़ों को बता देता हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा. आपके एक दो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं तो वो मैं मतलब कर रखे हैं. एक है वेब फॉर्म. आपको आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू आर नोन अबाउट वेब फॉर्म. अभी ये पेंडेमिक के आने के बाद से वेब फॉर्म काफ़ी यूज़ होने लगा है. वेब फॉर्म एक वो सुविधा है जो कनाडा आपको देता है, वीज़ा एप्लीकेशन VFS आपको देता है कि आपने कनाडा में ऑलरेडी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगा दी है, बट आफ्टर दैट बिफोर यू गेट द वीज़ा डिसीजन आपके प्रोफाइल में या आपके किसी भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे एप्लीकेशन के लिए उसमें कुछ चेंज आया है तो यू कैन ऑलवेज अपडेट द एम्बेसी थ्रू योर वेब फॉर्म. क्या चेंजेस आ सकते हैं? मेजर चेंज तो ये आता है कि आपने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करा था पर अभी वीज़ा डिसीजन आया नहीं, बहुत समय लग गया. अब आपका इनटेक आप डेफर करा रहे हो जनवरी इनटेक के लिए, आपका नया ऑफर लेटर मंगवा लिया आपने कॉलेज से जनवरी इनटेक के लिए, तो आप ये ऑफर लेटर वेब फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, तो एम्बेसी ने अगर समझो आपको सितंबर लेट में डिसीजन दिया है तो ऐसा ना हो कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज कर दे ये सोच के कि आपका तो इनटेक निकल गया है. तो बेटर है कि आप अपना रिवाइज्ड ऑफर लेटर उनको टाइमली दे दें और वो उस कारण से आपके डिसीजन में कोई दिक्कत नहीं है. बहुत रेयर केसेस में वेब फॉर्म इसलिए भी यूज़ होता है कि जब आपने अप्लाई करा था वीज़ा, यू आर नॉट मैरिड, अचानक से शादी हो गई है, नाउ यू वांट टू डिस्क्लोज दिस, ऑब्वियसली वन शुड डिस्क्लोज दिस थिंग टू द एम्बेसी. तो आप इस तरह का कोई भी कुछ नया चेंज आया है तो यू कैन ऑलवेज अपडेट द एम्बेसी थ्रू वेब फॉर्म. एक टर्म होता है केप्स नोट. केप्स नोट यूज़ करा जाता है कि किसी स्टूडेंट का वीज़ा एप्लीकेशन लगाया है कनाडा के लिए और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो यू कैन ऑलवेज क्लेम बाय पेइंग चार्जेस टू द एम्बेसी एंड गेट योर केप्स नोट. केप्स नोट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि एम्बेसी ने किस किस स्टेजेस पे आपकी प्रोफाइल को किस तरह से असेस किया था और उसमें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाता है कि आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस क्या थे. तो अगर आप वापस अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में तो आप अप्लाई कर सकते हैं और केप्स नोट की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था. सी लेट मी टेल यू, केप्स नोट आप निकलवा सकते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी. अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो बहुत बार बहुत नॉन साइंटिफिक रीजंस पे भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है. मैनी अ टाइम्स व्हेन यू रीअप्लाई फॉर द वीज़ा विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन योर प्रोफाइल, इन सेकेंड टाइम यू माइट गेट द वीज़ा. ओके, तो पर अगर आपको लग रहा है कि यू रियली वांट टू नो द एग्जैक्ट रीजंस व्हाई योर वीज़ा वाज रिफ्यूज्ड, जो कि रिफ्यूजल लेटर में डिटेल में लिखा हुआ नहीं आता है, तो यू कैन ऑलवेज गेट योर केप्स नोट. फाइन. स्पाउस वीज़ा कनाडा में और सभी कंट्रीज में if someone is going on student visa they can take their spouse along with, साथ में भी लेके जा सकते हैं, बाद में भी इनवाइट कर सकते हैं. स्पाउस को वहाँ जाने पे काम करने की परमिशन होती है, दे कैन वर्क फुल टाइम एंड स्पाउस को IELTS नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, मेन एप्लीकेंट को IELTS देने की ज़रूरत रहती है. I think most of things I have covered. Let me see if there are any questions left. After 12+3 graduation for applying in university requirement 12+4, do I need to do a diploma course to be eligible? Yes, as I said, कि क्वेश्चन है कि आफ्टर 12+3 if I want to go to a university to pursue a master's degree तो मैं कैसे एलिजिबल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ. तो उसका ये है कि अगर आपका 3 साल का डिग्री रहा है इंडिया में आफ्टर 12 तो वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट नहीं होगा. तो आपके लिए यही पाथवे है कि आप पहले वहाँ पर जाके, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देती हैं,
तो आप या तो यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं या आप किसी अच्छे कॉलेज का डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा यू कैन टेक द एडमिशन इन द मास्टर्स डिग्री इन अ यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपने जो डिप्लोमा किया है उस कारण से आपको कुछ क्रेडिट भी मिल जाए और आपकी मास्टर्स डिग्री में एडमिशन भी हो जाए और आपका मास्टर्स डिग्री का ड्यूरेशन और कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाए। आफ्टर रीचिंग कनाडा व्हाट अमाउंट वी गेट एज आर लिविंग एक्सपेंसेस। आपका जो 10,000 कैनेडियन डॉलर आप वहाँ जमा कराते हैं वो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाता है। करीब करीब 1200 से 1500 कैनेडियन डॉलर आपको आप रिलीज करा सकते हैं अपने जीआईसी अकाउंट से मंथली लेवल पे। उस पर आपको एक बहुत मामूली सा इंटरेस्ट भी मिलता है, बहुत मामूली मिलता है, इसलिए उस इंटरेस्ट को यू कैन नॉट कंसिडर एज ए इनकम। तो वो आप वहाँ जाके विड्रॉ कर सकते हैं। What is the option is better for students in campus stay or out of? One very good question. What is the option is better for students whether after reaching Canada they should stay in the college or university campus or they should stay outside the campus? देखिए, अगर मैं इन जनरल बात करूं, ऑन फेस वैल्यू बात करूं, तो ये तो हमेशा से अच्छा है कि अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के खुद के फैसिलिटी में अपना अकोमोडेशन लें। लेकिन ये इन जनरल सही है, ये ऑलवेज सही नहीं है। उसके दो तीन रीज़न हैं। एक तो कॉलेज अकोमोडेशन या यूनिवर्सिटीज़ के पास में बहुत लिमिटेड अकोमोडेशन फैसिलिटी होती है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जब जा रहे हैं तो आपको वो फैसिलिटी मिल जाए। ओके, ये ज़रूर है कि अगर आपको वहीं रुकना है तो आप वहाँ रेगुलर ट्राई करते रहिए, एक बार चले जाइए, कहीं रहना स्टार्ट करिए, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहाँ भी आप गए हैं उनके अकोमोडेशन फैसिलिटी से कॉन्टेक्ट में रहिए। तो जैसे ही कोई फैसिलिटी फ्री होती है अकोमोडेशन की तो यू कैन शिफ्ट योरसेल्फ टू देयर। दूसरा रीज़न ये भी है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर मिलने वाली फैसिलिटी से एमिनिटीज़ के मामले में बेहतर ही हो। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस या हॉस्टल से बाहर रहते हैं तो आपको कम कॉस्ट पे बेटर एमिनिटीज़ भी मिल जाती हैं। मेरा जनरली बहुत स्टैंडर्ड थंब रूल है कि जब आप फर्स्ट टाइम कनाडा जा रहे हैं, इफ़ यू डू नॉट नो एनीवन, तो आप अप्लाई मेंटर अगर आपको जो 2 4 5 10 ऑप्शन देता है उसमें से अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज करिए। आपको वहाँ की पिक्चर्स, आपको वहाँ की एमिनिटीज, कॉस्ट सब हम एडवांस में बता देते हैं। सोच समझकर एक अकोमोडेशन बुक करिए, बट बुक इट मैक्सिमम फॉर अ मंथ। उस एक महीने बाद जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो हमने नहीं दिए थे, उससे बेटर ऑप्शंस भी आपको वहाँ मिल सकते हैं। तो आफ्टर दैट, ड्यूरिंग दैट 1 मंथ आप वो सब अकोमोडेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, इन द कैंपस, आउटसाइड द कैंपस। हो सकता है जब मैंने आपको यहाँ ऑप्शन दिए थे या हमने यहाँ दिए थे तो वो ऑप्शन आपको तब अच्छा नहीं लगा था, पर वहाँ जाकर देखने पे आपको बेटर लगा। तो आपने सिर्फ क्योंकि इनिशियल अकोमोडेशन एक ही महीने के लिया है तो यू कैन ऑलवेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मंथ यू कैन चेंज टू अ डिफरेंट अकोमोडेशन। और इफ यू फाइंड वॉट एवर अकोमोडेशन जो आप इंडिया से बुक करके गए थे वही आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन एक्सटेंड इट कंटिन्यू, यू कैन कीप इट कंटिन्यू। तो ऐसा कोई एक रामबाण जैसा आंसर नहीं है कि हमेशा कॉलेज की फैसिलिटी या यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन फैसिलिटी ही अच्छी है या बाहर ही रहना अच्छा है। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट, फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड नंबर ऑफ द क्राइटेरियाज। आपसे पहले आपके फ्रेंड्स गए हैं वो बाहर कहीं रह रहे हैं, या आपसे पहले आपके फ्रेंड्स गए हैं वो कॉलेज में रह रहे हैं, उनके पास में जगह है अकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर वे में, तो यू कैन ऑलवेज गो विद देम एज वेल। ओके, लेट मी सी। आई थिंक अभी कुछ ज़्यादा क्वेरीज मुझे दिख नहीं रही हैं। इफ़ आई हैव मिस्ड टू आंसर एनी क्वेरी प्लीज़ type your query again, so I will try to answer if I have not missed any question. Fine. So I think it is a time to sum up. Let me just repeat one thing, that right now for the next 7 days we are celebrating Canada Week. So if you are applying in next 7 days, keeping your academic documents, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में। IELTS पेंडिंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं जैन इनटेक के लिए काफ़ी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो $100 से अगर आपकी एप्लीकेशन फीस है तो उसका 50% मेंटर विल बी हियर फॉर यू एंड यू कैन बुक योर सीट। ओके, आई थिंक all I have right now to say. Let me just see if I have missed anything. Fine, I think this is. Let us take one more minute. If anyone of you have any query, please write down your query in the chat box,
and I will try to answer it. Otherwise, we will sum up today's meeting. Fine, let me write down my direct WhatsApp number and mobile number here in the chat box. My direct number. You can call me or you can WhatsApp me even after this meeting or any day you have any query. Most of you might be connected to our counselors, our very expert counselors. So आप उनसे भी कोई query आज नहीं proper मैं explain कर पाया हूँ, कोई topic मैंने छेड़ा लेकिन ढंग से नहीं बता पाया हूँ, तो feel free to ask us on call or WhatsApp or email, and we will be more than happy to answer your queries. Fine. So let's sum up today's discussion. I'm really thankful everyone. आप इतनी लेट वाले वेबिनार में आप लोगों ने अटेंड करा. आई होप अच्छा डिस्कशन कुछ तरह से आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा. सो वी विल कीप इन टच. टेक केयर. गुड नाइट. बाय.